So today we're going to be discussing the book 99 Nights in Dogar by Jamil Jan Kochai. और ये किताब जो है वो मरवंद के बारे में है. It's about Marwand. And Marwand is a 12-year-old boy who visits his parents' village. है ना, वो अपने आबाई गांव वापस जाता है अफगानिस्तान में, दोगार. Or and when he goes, the war situation in Afghanistan with America is a little dormant. है ना, थोड़ी सी जो जंग है वो आहिस्ता हो जाती है, हल्की हल्की हो जाती है इस वक्त. तो जो बच्चे हैं वो घूम फिर सकते हैं, right? And one of the things that happens is that they go on looking for the dog, right? His dog Budabash, जो होता है उसका जो पालतू कुत्ता होता है उसके कजिन्स का, उसकी फैमिली का, वो गुम हो जाता है. तो उसको ढूंढने निकलते हैं वो सब. They all go searching for him, and that is how we hear about the story, right? That is how the story opens up. कहानी इस तरह खुलती है हमारे लिए कि वो अपने एक पेट को ढूंढ रहे हैं. So I would really like to, I have a lot of things to discuss with all of you, but I would really like to hear from each one of you first. कि आप लोगों ने किताब पढ़ी, what did you think, what did you feel? आपने किसी के साथ शेयर की किताब या नहीं की शेयर स्टोरी को, और उन लोगों ने क्या बोला? तो कौन कौन डिस्कस करना चाहेगा हमारे साथ आज? फिर हम एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है जी. अपना नाम बताइए पहले और फिर. जी आपका यासीन. जी आई एम रमजान. रमजान कैसे हो? हाउ आर यू रमजान? आवाज नहीं आ रही. One minute. Is it better now? आपको मेरी आवाज आ रही है बेहतर? Can you hear me? Ramzan, how are you? You had an accident and you got injured. Are you feeling better? Chalo, very good. That's very good. बहुत अच्छी बात है. I'm really happy to hear that. आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ. बहुत शुक्रिया पूछने का. Thank you for asking. I'm doing well. I'm doing very well. So, chalo Ramzan, tell us what you thought about the story of Marwan. First of all, we are really thankful of you. We are meet with you again, and really happy today. Today I learned a lot of things from this book. 99. Wait, Ramzan, I can't hear you. You're stuck. Eamon, can you hear them?
Hello. Hello, Ji Riaz bhai, I can hear you properly. Yes, and also see you properly. जी हमजा अब ट्राई करते हैं ठीक है All right, ये बहुत बेहतर है. It's much better. Great. Hello, Ramzan. Nice to see you again. It's really nice to see all of you again. Bataiye, Ramzan, you were telling us about the book. Sir, nice to meet with you. अभी आवाज आ रही है हमारी आपके पास? जी आ रही है. Please share your thoughts. Today I am telling you about this book 99 novels that has been written Jamil Jan Kochai. That he is telling a story of 12 years old Afghanistan to find and bring home the family dog, blending the grace and immediacy of wise drawing, like we need new names with the multi-meaning of 1001 nights. Jamil Jan Kochai writes a beautifully multi-yard and complex novel structured with stories within a main narrative that comprise of coming age, taboo and challenges of identify and belonging that will resonate for all of us who have moved and made their homes in. हम इस बुक में जो पढ़ा है 99 नॉवेल्स से जिसका राइटर है ना जमील जान कोचाई, तो ये बता रहे हैं एक पहले तो ये पाकिस्तान के थे, फिर ये अफगानिस्तान विजिट के लिए गए और वहाँ ट्रेडिशन और अफगानिस्तान का जो ट्रेडिशन है कल्चर है उसके बारे में इस बुक में डिफाइन कर रहे हैं. वो बता रहे हैं अफगानिस्तान का कल्चर और ट्रेडिशन, और एक यंग मैन जो बॉय 12 इयर्स ओल्ड का उसकी स्टोरी बता रहे हैं कि वो फैमिली के साथ घूमने फिरने गए, वो उनका जो वो डॉग था वो कहीं गुम हो गया है, फिर उसको ढूंढने में गायब हुए अपने फ्रेंड्स को वो छोड़ के वहाँ यूएसए चले गए. तो उनकी हिस्ट्री को ये जमील जान कोचाई बयान कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ये इस बुक में ट्रेडिशन और कल्चर को बता रहे हैं. तो मेरा अगला फ्रेंड है वो आपको ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में इस बुक में जो पढ़ा है वो आपको बताएगा. 99 Nights novel. Hey, Ramzan, thank you for the wonderful introduction that you gave to the book. And whoever comes next, जो रमजान के दोस्त हैं, please introduce yourself, tell us your name, and then share what you thought about the book. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, are you hearing us? Yes, I can hear you. Yes, Hello. I can hear you. I'm Ajib Rahman. So I want to share with you some information about this book. Mujib, So, Mujib, here all, is that your name? Mujib, आपका sir, नाम? Ajibur Rahman, sir. Ajibur Rahman. Okay, Hello. I'm listening. Hello. Yes, I can hear you. I Sir, can so hear I you. want to, sir, so I want to share with you some information about this book. 12-year-old Marwan and his family have traveled from their new home in America to visit their existing family in Logar province of Afghanistan. So it is 6 years since they were last there, and Marwan and his younger brothers revel in reconnecting with their cousins and being free to run around. When Marwan tries to make friends with the family guard dog Badsha, he has finger bitten off and the dog in caps. Agent's family orders Marwan and his band of friends leave the compound, go in search of the dog. So the dangers carry their thieves, compound fighters, and US soldiers. So my next friends come and more fun about. Okay, thank you, Ajibur Rahman. Thank you so much. मैं सुन रहा हूँ. जी, I'm waiting for the next student. Thank you. जो आपने अजीबुर रहमान जो आपने पार्ट बताया है ना when the Hello.
Ali Ada. माफ कीजिए, I'm sorry, my internet got disconnected. Hello, sir. Hello, assalamu alaikum. Please let us know your name. My name is Sarmaram Ali. Madam, how are you? कैसे हो भाई? सर मैं ठीक हूँ, आप बताओ। Alhamdulillah, Allah ka shukr. I'm good. I really want to hear what you thought about the book. आपने क्या सोचा किताब पढ़ के? Yes, sir. In this novel, Karachi makes two great writing choices that makes Afghanistan culture feel warm and immediate. First, he frequently used Pakto words without any awkward impression for English speaking reads. Second and best, all he tells many parts of his story in the tale of the better and daughters, the tales of the girls in the blue dress, which conveys the loss of the necessary information in a entering way without end of inform. It also loved about 1001 Nights Afghanistan storytelling tradition. Yes, Yes, sir. that's right. ठीक है मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया. Thank you so much. अब हम डिस्कस करेंगे जो आपने बोला है, लेकिन सब अपनी बारी पूरी कर लें. Let everyone speak and then we can discuss all the points one by one. Thank you, madam. Is there anyone else? और कोई है? Walaikum assalam. What's your name? How are you? My name is Wahid Hussain and from class metric in Industry School of Knowledge High School, Chachawakat in Sindh, Pakistan. That's very good. I am Wahid telling you Hussain. about, Is your name? I'm sorry. Is your name Wahid Hussain? yes sir, All right. Thank you, Wahid. yes sir. जी बताइए. I am telling you about 99 Nights in Logar. Is an insight into Afghan culture and recent turbulent story of the country and exploration of storytelling. Told in the narrative style and colloquial speech of the tank by man words and experience and stones, is listed travelers stories and controversies, tales and religious problems. Thank you, sir. Thank you so much, Wahid. Thank you. हमको एक्चुअली इनको बुक्स जो है ना वो मिली नहीं थी है, तो हमने ये 2 दिन में इनको जो है वो रिव्यूज जो है या जो पीडीएफ में बुक थी हमारे पास, तो से बच्चों की प्रिपरेशन करवाई थी, लेकिन हमें ये बुक्स नहीं मिल पाई थी. ये जो है ये किताब थी, तो मैं तो बोला कि अगर ये उर्दू में कुछ शेयर करना चाहे तो ये वो भी कर सकते हैं. अगर आप इसे उर्दू में बताना चाहें, ये जरूरी है कि आप इंग्लिश में बता रहे हैं, जो आपने समझाया आप उर्दू में शेयर करना चाहें ये कर सकते हैं. चल कोई no problem. It's fine. उन्होंने फिर भी अच्छी चीजें पढ़ी है, सुनाई है. So and I have some things to discuss. So should I go ahead with that, or आपके students को और भी कुछ contribute करना है? Hello, sir. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm Afaq. Fine, sir. What about you? I'm good, alhamdulillah. Afaq. Please share whatever your thoughts are.
ये अफगानिस्तान के कल्चर के बारे में जो दूसरे जो दूसरी बात है उनको बताया और कल्चर खराब भी नहीं है जितना उनको बताया जा रहा है। ठीक है, that's right, all right. हमारे सर जो ये बुक का हमने रीडिंग की है इसमें से हमें बहुत फायदा हुआ है, जैसे हमारी रीडिंग स्किल्स है और हमें दूसरे कल्चर के बारे में पता चला है कि वो कैसे गुजारते हैं अपना वक्त। जी बिल्कुल आफाक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड मैं सबसे आखिर में इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जो आपने अभी कही है ना कि थ्रू रीडिंग वी नो अबाउट अदर कल्चर्स, है ना, वी विल डिस्कस दिस, ओके। हमें दूसरों के कल्चर के बारे में पता चला है कि वो कैसे गुजारते हैं अपना वक्त और हमें बहुत सारा इसमें फायदा हुआ है, जैसे हमारी रीडिंग स्किल्स और नॉलेज हमारी। बहुत अच्छा। चलें, सो क्या मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इस कहानी के बारे में जो मैंने पढ़ के सोचा था? Would you guys like to hear me talk about it? Okay. तो मरवंद जो है वो 12-13 साल का है और अफगानिस्तान में वो अपने आबाई गांव विजिट करने जाता है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? All right. So Marwan goes to visit his parents' village. अब उसके पेरेंट्स के विलेज में ना 4 और कैरेक्टर्स होते हैं. There are 4 more characters which are very important in the story. The first character is Budabash, which is the dog, जो उनका पालतू कुत्ता होता है, ठीक है? और बुदाबाश के बाद Marwan has some cousins, and Marwan's cousins' names are Gul, Dawood, and Zia. So what happens is that when Marwan goes to the village, है ना, सबसे पहले जब वो गांव जाता है, so the first thing that happens to him, जो पहली चीज उसके साथ होती है वो ये है कि the dog bites his finger off, है ना, जो पालतू कुत्ता है वो उसको अटैक करता है, ठीक है? ये चीजें आप याद रखें, ठीक है? मैं आपको 3 चीजें गिनवा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We're going to talk about them in some detail. So the first thing that happens with Marwan is that the dog attacks him. Okay. The second thing that happens is that Marwan के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, अपनी अफगानी लैंग्वेज में, पश्तो में कम्युनिकेट करना अपने दोस्तों और कजन्स के साथ, है ना, क्योंकि वो इतने अरसे he was living outside Afghanistan and he had forgotten how to say mamu or father in Pashto, right? He had forgotten these words. So the dog attacked him. कुत्ते ने उसको अटैक किया. Marwan forgot the language, ज़बान वो भूल गया. और तीसरी चीज जो डाइट थी उसकी, the food he ate, the food he was eating was giving him diarrhea, right? It upset his stomach. उसका पेट खराब हो गया था वहां का खाना खा के. आप लोगों ने तीनों चीजें सुनी कि ये 3 चीजें क्या हुई थी उसके साथ, है ना? डॉग अटैक, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स and diet and stomach problems, right? Some upset stomach, है ना? So when these 3 things happen to Marwan feels really sad and he feels really bad because he feels like an outsider, है ना? जैसे अगर उसको अगर पालतू जो कुत्ता था बुदाबाश, if he recognized him, अगर वो Marwan को पहचान लेता तो वो उसको अटैक नहीं करता, मगर उसने उसको नहीं पहचाना, है ना, और उसने उसको अटैक किया कि ये कोई गैर है, that this is someone other, this is some other person who is not a part of the family, not a part of the village and not a part of the family's friends, right? And when he forgets the language, then he can't communicate, है ना, Marwan भी communicate नहीं कर पाता. So then again he feels like a गैर, है ना, दोबारा वो एक अदर की तरह फील करता है. और तीसरी चीज वो तो बहुत ही जाहिर है, which is obvious, is that the food does not suit him over there, right? Does this make sense that he felt
strange? He felt like a stranger? आप लोगों ने समझी ये बात? Did you understand कि वो एक अजनबी जैसा महसूस कर रहा था? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप जी कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो मुझे नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। समझ लिया ना जो मैं कह रहा था? जी सर। Okay. So what this story actually does, what Jamil Jan Kuchai wants to do, जो writer जो हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग इस experience के बारे में, इस तजुर्बे के बारे में सोचें और गौर व फिक्र करें, that we really think about it, about you know the self and the other and culture, है ना? कि आपकी एक सकाफत है और एक आप खुद हैं और एक गैर लोग होते हैं, है ना? या इससे भी ज्यादा ये एहसासात होते हैं. These are feelings. Someone can feel other. Someone can feel like they belong. These are two things. या तो आप उनमें से एक हैं या आप उनमें से एक नहीं हैं, एक सकाफत में से, from a culture. That is what he wants us to think about. है ना? रियाज भाई, please stop me if you want a pause and you want to explain to your class what I'm saying. Feel free to stop me anytime. सर ये बात जो उन्होंने समझा है ये अपना शेयर भी लेंगे। सर बिल्किस क्या पता है? ओके, रात को जो हमला हुआ दूसरी चीज क्या थी? लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो अपनी जुबान उनके ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आ रही। तो तीसरी समझ रहे ठीक है, कंटिन्यू करें. Shall we move on? Okay. So what happens now is that he has introduced these problems. है ना? ये problems introduce हो गई है कि ये feel कर रहा है. And how does the story go on? The story is a narrative. है ना? It's a story of searching for the dog. Because बुदाबाश उसको काटने के बाद भाग जाता है, फिर उनको उसको ढूंढना पड़ता है ना? अब आप लोग जब रीडिंग करते हैं, when you read, you can learn about many different ways to tell a story, right? कितने तरीके हैं जिसमें आप कोई कहानी सुना सकते हैं किसी को. एक तरीका ये होता है जो जमील जान कुचाई ने हमें दिखाया है यहाँ पर, in which you can explore the problems, है ना? जो हमने 3 problems discuss की और वो he felt like a stranger, like a अजनबी, तो वो हम explore कर सकते हैं through the searching for the dog. Make sense? Okay. So when this happens, है ना, जब एक search involved है एक पूरी कहानी में, when the search is involved, right, this desire to find what's lost, है ना, तो it's not only the dog that they're finding. So he's also trying to find out why the dog bit him. He's also trying to learn the language again, right? He's also trying to find old places that he has heard of, जो पुरानी जगह उसने सुना है उनके बारे में. तो वो बहुत सारी चीजों की तलाश एक साथ हो रही है और उसमें फिर सरप्राइज बहुत होता है ना? क्योंकि जब तलाश होती है, when there is searching, there is the element of surprise, है ना? जब आप इस तरह कोई कहानी बताएंगे कि कोई कुछ मसला था और फिर वो कोई उस चीज को ढूंढ रहा था, then there will be lots of twists and turns in the story in which there will be surprise, and that's actually very good storytelling. All right, so today you guys are also learning about a very good way of storytelling. Is that fine, Riaz bhai? Should I move on? जी सर. Okay. सभी आपकी आवाज का प्रॉब्लम है, आप आहिस्ता और उर्दू में ज्यादा बताएं तो बेहतर रहेगा. एक्सटेंट की जैसे आवाज कट रही है. अच्छा, अभी सही आ रही है मेरी आवाज? अभी सही है. ठीक है. अगर खराब, आहिस्ता
I will talk slowly. So there's one scene in the story. एक scene आता है कहानी में जब एक सैलाब आता है, there is a flood, है ना? So when there is a flood, मरवन जो बच्चा है 12-13 साल का, he almost drowns, right? He's going to drown because of the flood. तो एक सैलाब आ रहा है और वो डूबने वाला है और उसको अपनी जान बचानी है. He has to save his own life. What does he do to save his own life? वो क्या करता है अपनी जान बचाने के लिए? He clings on to a corpse. तो एक लाश होती है जो कि तैर रही होती है उस पानी के ऊपर और वो उससे जाके लिपट जाता है. He holds on to that ताकि वो डूबे नहीं. Right? This is a very good metaphor, है ना? ये एक बहुत अच्छा इशारा है, एक सिंबल है ये बहुत अच्छा कि जब आप कोई खोई हुई चीज को ढूंढ रहे होते हैं, when you are looking for a lost thing, अक्सर you have to trace and you have to find out more about, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी पड़ती है उन चीज़ों की जो कि अब मर चुकी होती हैं, अब ख़त्म हो चुकी होती हैं, things which are no longer there, है ना? So that's why we have graveyards, for example, जो कब्रिस्तान है. मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक मखली का कब्रिस्तान है. मखली का कब्रिस्तान, ये जो बड़े बड़े जो कब्रिस्तान होते हैं उनमें पत्थर से कब्रें बनी हुई होती हैं, है ना? या जो मज़ार होता है ना, या आपके जो दादा परदादा हैं उनकी जो कब्रें होती हैं. So by understanding those graves, by understanding who those people were who are dead, right, by holding on to them, उनको पकड़ के आपको अपनी तारीख समझ में आती है, आपको अपनी सकाफत समझ में आती है, right? आपको समझ में आता है कि आपके बड़े कहाँ थे, कहाँ से आए, कौन सी ज़बान बोलते थे, उनका इंतकाल कैसे हुआ, किस हालत में हुआ. So all of these things teach you a lot about history and society and culture. All right? आपको ये सारी चीजें तारीख, आर्ट और सकाफत के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, आपको बहुत इल्म देती हैं ये चीजें. हालांकि वो अब नहीं है हमारे साथ, है ना? वो जिंदा नहीं है वो चीजें, they are not alive. लेकिन आपके समझने के लिए वो मौजूद हैं. You can bring them back to life if you hold on to them, right? So, okay, moving on. एक और डायलॉग है इस कहानी में. There is one dialogue in which Marwan's father says to Marwan, जिसमें मरवंत के जो वालिद साहब हैं वो मरवंत से कहते हैं कि forget about American TV and movies. Tell our own story. कि बेटा अमेरिकन टीवी और फिल्मों के बारे में भूल जाओ और अपनी कहानी सुनाओ, है ना? हमारी अपनी जो कहानियां हैं वो सुनाओ. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल के दौर में we are constantly surrounded by English, right? The English language and English media and English movies and everything. But Marwan's father is asking him to do something different. मरवन के वालिद साहब जो हैं वो उससे कुछ अलग करने को कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इन सबको भूल जाओ, हमारी अपनी कहानी सुनाओ. Tell our own story. So, you know, I want to tell you something that happened during one of our sessions with the children in Afghanistan. जो आपके partners हैं ना अफगानिस्तान में, जो school students हैं जिनके साथ हम ये sessions करते हैं, तो जब हम उनके साथ ये किताब discuss कर रहे थे, when we were discussing this book with them, one of the students said that, you know, she was interested in fashion. ठीक है, तो ये एक फीमेल स्टूडेंट थी, एक गर्ल थी, और उनको फैशन में इंटरेस्ट था बहुत. उनको पसंद था कि वो फैशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें. But she said that when we learn about fashion, we keep discussing Western designers, है ना? फला डिज़ाइनर, तो फला डिज़ाइनर जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, हमारी ज़बान नहीं जानते, who are not from our region.
but the student said that she wants to know more about her own history of fashion, है ना? पुराने ज़माने में सिंध में क्या फैशन हुआ करता था, पुराने ज़माने में अफगानिस्तान में क्या फैशन हुआ करता था, what was the fashion then, why was it so, वो जैसा भी था वो वैसा क्यों था, है ना? तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम अपने लिबास को अगर देखें तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे पूरी हिस्ट्री दे सकते हैं, यू कैन टेल मी प्रॉपर्ली अबाउट द अजरक, व्हाट डज द अजरक मीन? अजरक तो आप सबको पता है ना कि क्या होता है, हाँ, लेकिन अजरक पे जो डिजाइन बना हुआ है वो वैसा डिजाइन क्यों बना हुआ है, वो किसने बनाया था, कहाँ से शुरू हुआ? So these are very important things that we all need to be paying attention to, है ना? इन चीजों के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी चाहिए, we should find out more about them. Does that make sense? आप लोग समझ पाए मेरी बात? ये बता रहे सर, सर मैं आपको अजरक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। वैसे तो अजरक हमारी सिंध की गिफ्ट है कि देसी परदेसी जो लोग आते हैं हमें उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। और सिंध के शहर हाला में जहाँ बादशाह की मज़ार है वहाँ अजरक बनता है, इसकी डिज़ाइन लोग बनाते हैं। और अजरक की हमारे सिंध में तो बड़ी अहमियत है, हम एक दूसरे के दूसरे सूबों और दूसरे मुल्कों को गिफ्ट में देते हैं क्योंकि वो हमारी अजरक और टोपी सिंध की सकाफत है। और हम इसका दिन भी मनाते हैं 6 दिसंबर, 5 दिसंबर जो है हम अजरक और टोपी का दिन भी मनाते हैं। ये अजरक की अहमियत हमारी बहुत अच्छी। वेरी गुड रमजान, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये पता है। लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें और भी चीजें हैं जो आप पता कर सकते हैं कि जो डिजाइन बना हुआ है वो क्यों है, वो डिजाइन, वो कोई और डिजाइन क्यों नहीं बना हुआ, है ना? Why is it not something else? So there is something more that we need to know, right? There is some more research और तहकीक है जो हम कर सकते हैं। तो वो जो अफगानिस्तान के स्कूल में जो स्टूडेंट थी वो यही कह रही थी कि, और जो मरवंद के वालिद साहब जो मरवंद से कह रहे हैं उनका यही मतलब है, समझे आप? Do you understand? जी सर, समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, एक आखिरी बात है मेरे पास, I have one final thing to say and this is related to what आफाक said. मैंने कहा था शुरू में कि जो आफाक ने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आखिर में उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो आफाक से बोलें कि वो अपने कान खोल लें। बिल्कुल, ओके आफाक, आर यू लिसनिंग? Sir, he is listening. All right, very good. So Afaq said that by reading के through we learn about other cultures. हम दूसरे cultures के बारे में सीखते हैं, है ना? और इस किताब के आखिर में ना, जो आखिरी हिस्सा है इस किताब का, the final part of this book, the last 6 pages, जो आखिरी के 6 पेजेस हैं, सफ़े हैं, वो पश्तो में हैं और वो ट्रांसलेट नहीं हुए। दे आर इन पश्तो एंड दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, राइट? वो उसके कजन का कोई हिस्सा है जो वो कुछ बता रहा है, राइट? हिज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द बुक इज टॉकिंग अबाउट हिज स्टोरी इन पश्तो एंड द ऑथर जमील जान कुचाई डिड नॉट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ही डिड नॉट पुट इट इन इंग्लिश। This is important. ये जरूरी है क्योंकि it teaches us that to communicate, ये हमें सिखाता है कि communicate करना हमारी जिम्मेदारी है ना? communicate करना सीखना कि कैसे communicate करना है, to learn how to communicate with other cultures is our responsibility. Alright, एक इसकी बहुत अच्छी मिसाल है. There is a very good example of this. And if you talk to Sir Riaz about this, Sir Riaz आपको बहुत कुछ मेरे ख्याल से बता पाएंगे. He will tell you a lot more detail
So the example I wanted to share with you, जो मिसाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको आप गौर से सुने, और ये मुझे भी बहुत हैरान करती है ये बात. It's very surprising for me. All right, and that is all the books that are written in Punjabi, है ना? जो किताबें पंजाबी में लिखी जाती हैं उनका सिंधी में तर्जुमा होता है. They are translated into Sindhi, and the books that are written in Urdu are translated into Sindhi, and the books that are written in Sindhi are translated into Punjabi, है ना? तो वो आपस में सबको एक दूसरे के कल्चर के बारे में मालूमात मिलती रहती हैं. और आप सिंध में बहुत बड़े राइटर्स हैं. सिंध हैज मेनी गुड ट्रांसलेटर्स एंड राइटर्स who do these translations from other languages to Sindhi. ठीक है, दूसरी ज़बानों से सिंधी में वो उन किताबों को उनका तर्जुमा करते हैं. मगर but right, and this is the important point, जो उर्दू राइटर्स हैं, many उर्दू राइटर्स, most उर्दू राइटर्स, है ना, पंजाबी और सिंधी की किताबों का उर्दू में तर्जुमा नहीं करते. Right, so most Urdu writers don't translate Sindhi and Punjabi books into Urdu. So the Sindhis are translating the Urdu books into Sindhi, but the Urdu speakers are not translating the Sindhi books into Urdu. है ना? तो ये तो बहुत ही one directional है ना. सिर्फ सिंधी जो writers हैं वो समझ रहे हैं कि उर्दू किताबों में क्या क्या बातचीत हो रही है, क्या बहस हो रही है, क्या क्या कहानियां हैं, right? But the Urdu writers are not doing this with Sindhi books and Sindhi stories. तो ऐसा क्यों है? Sir Riaz, would you like to comment on this? एक्चुअली सर, जैसे आपको पता है कि रिसेंट पास्ट में हमारे यहाँ ना लिटरेचर फेस्टिवल का जो रुझान है बहुत बढ़ गया है. आपने देखा होगा कि जो है वो ऑक्सफोर्ड फेस्ट जो है हर साल जो है वो लाहौर और कराची में जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे थे. पेंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूँ. और उसी चीज को सामने रखते हुए जो हमारे सिंधी राइटर्स हैं उन्होंने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिटरेचर फेस्टिवल्स करवाए हैं. ताकि मुझे याद है कि हमने 2018 और 2019 में खैरपुर में 2 मरतबा लिटरेचर फेस्टिवल करवाया है यहाँ पे खैरपुर में. और उसका मकसद ये है कि बेसिकली हम नौजवानों में जो उनकी रीडिंग हैबिट्स है वो इम्प्रूव करें, और उसमें जो लोकल राइटर्स है उनको हम प्रोमोट करें. जो खैरपुर के सखर के लोकल राइटर्स है उनकी अब बेहतर हुआ है. मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी. आपने जब खैरपुर के 2 लिटरेचर फेस्टिवल्स की बात की थी फिर वो अटक गया था उसके बाद. कैन यू कंटिन्यू? जी हमारे सारे चीज को एक्चुअली हम आ गए हैं. तो एक्चुअली मैं यही बता रहा था कि हम जो है यहाँ पे वो जो लिटरेचर फेस्टिवल हम करवा रहे हैं तो उससे उसका मकसद ये है कि जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल राइटर्स और लोकल लैंग्वेज को हम प्रमोट करें. जो विद इन सिंध में जो हमारे डिफरेंट जो रीजन है उनके जो राइटर्स हैं, जैसे यहाँ पे सराइकी भी है, बलोच भी है सिंध में, बिंदु पंजाबी राइटर्स भी हैं, तो उनका एक जो है ना आपस में एक रिलेशन बने और हम लोकल राइटर्स को प्रमोट कर सके. तो इसी तरह अगर हम बात करें, अगर इसी तरह हमारे यहाँ नेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हो जिसमें जो विद इन पाकिस्तान जो मल्टी कल्चर के लोग हैं, मल्टी लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, राइटर्स हैं, उनको एक चांस मिले एक दूसरे की राइटर्स को पढ़ने का. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ. शाहबुद्दी पिटाई जो है वो उनको हम बोलते हैं कि वो आलमी इंसानियत के शायर हैं. तो उन्होंने भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है वो अपनी शायरी की है, फारसी में, अरबी में और सिंधी में. अगर मैं उसके बाद की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ सचल सरमस की, जो खैरपुर के शायर है सचल सरमस, तो सचल सरमस ने 7 ज़बानों में शायरी करी है. 7 ज़बानें में वो वही आएगी, सराइकी, पंजाबी, फारसी, सिंधी, उर्दू. तो देखिए ये यहाँ से हमें क्या लर्निंग मिल रही है कि अगर हमें अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है तो उसके लिए हमें
दूसरों की लैंग्वेज और उनकी उनकी उनका जो अदब है उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ से जो लर्निंग हो रही है वो ये हो रही है कि जो लैंग्वेज है उसको समझना जानना बहुत जरूरी है, और दूसरों के कल्चर को समझने के लिए उनकी लैंग्वेज और उनकी उनका उठना बैठना रहने करने का हमें सीखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग जो मैं समझ रहा हूँ कि जो लास्ट वर्ड से मेरी तरफ से यही है सर। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज तो आ गई थी ना जब मैं कह रहा था कि सिंधी बुक्स आर Sindhi writers translate Urdu books into Sindhi, but the Urdu writers usually don't translate Sindhi books into Urdu. Did you hear that part? रिपीट करिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी आखिरी बात थी बस कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वो सुनाई दी थी जब मैं कह रहा था कि आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है, प्लीज अब आ रही है। जी, so I was saying how Sindhi writers do translate Urdu books into Sindhi, but Urdu writers rarely translate Sindhi books into Urdu, कि ये जो एक फर्क है तर्जुमे की तहरीक में, ये मैं चाह रहा था कि आपके स्टूडेंट्स इसके बारे में भी सोचें। सर सॉरी रिपीट करिएगा प्लीज। जी मैंने वो ऑडियो सेट कर दिया है। कोई बात नहीं। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी अभी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज के बारे में सोचें, दैट दे थिंक अबाउट द फैक्ट दैट सिंधी राइटर्स पंजाबी बुक्स को सिंधी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, पंजाबी राइटर्स सिंधी बुक्स को भी पंजाबी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, और ये जो दोनों हैं सिंधी और पंजाबी राइटर्स उर्दू बुक्स को सिंधी और पंजाबी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, मगर बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ एक्सट्रीमली अनकॉमन that an Urdu writer will translate a Punjabi or a Sindhi book into Urdu. So I wanted your students to think about this, कि वो इसके बारे में भी सोचे कि ये डिस्कनेक्शन क्यों है ट्रांसलेशन की तहरीक में। तो आप ये प्लीज समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को? इवन तो मैं आपको बता चाहूँ कि हमारे डिपार्टमेंट है सिंध कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को ट्रेन किया है उनको लैंग्वेज के ऊपर। जस्ट लाइक मैं अगर सहर गुल साहिबा का नाम दूं यहाँ पे, तो सहर गुल साहिबा जो है बेसिकली वो सिंध गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे फारसी सीख के आई है ईरान से। तो वो जितनी भी शाह भटाई की जो शायरी है पर्शियन में वो उसको ट्रांसलेट कर रही है सिंधी में और इंग्लिश में। तो देखिए ये ऐसा ऐसा प्रमोट हो रही है कि हम लोगों को जो है ना वो लैंग्वेज सिखाएं ताकि वो जो हमारा रिटन मटेरियल है उसको हम जो ट्रांसलेट कर सकें। आई थिंक ये शायद टाइम की जरूरत भी है अभी कि हमें अगर अपनी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, अपने कल्चर को, तो हमें वो लैंग्वेज समझ के उसको राइटअप में लेके आना पड़ेगा। तो शायद आगे चल के सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ये भी करे कि जो हमारे उर्दू राइटर्स हैं उनको शायद अगर सिंधी सिखाते हैं हम, उनको पंजाबी सिखा दें तो वो लोकल जो लैंग्वेज है पंजाबी और सिंधी उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सके। जी बिल्कुल, आई थिंक ये सिंध गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आपकी जो सजेशन है कि ये उर्दू राइटर्स को भी इस तरह ट्रेन होना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए, इट मेक्स सेंस टू मी एंड आई एग्री विद दैट। इट्स रियली ग्रेट दैट हम इतने यंग लोगों के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें तो अब समझ में आई है, उनको अच्छा है कि पहले से ही समझ में आ जाए ये बातें। इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू ऑल ऑफ यू अबाउट दिस। All right, Riaz bhai, I think that's a good note to conclude the session. Unless आपके students के पास कोई questions हैं तो मैं उनको answer कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। थैंक यू वेरी मच हमजा, दे आर हैप्पी और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है आज इस लोकल बकरास प्रोजेक्ट का। वी हैव कंप्लीटेड आवर 12 सेशंस। हमने लास्ट ईयर कोई अक्टूबर में शुरू किया था, लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, और अभी हम जो है वो अक्टूबर है आने वाला, तो हमने एक साल कंप्लीट किया है इस पूरी जर्नी में। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर नवंबर में हमारा सेशन था अबाउट मलाला, तो हमने तकरीबन एक साल जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से कंप्लीट किया है, और बड़ी अच्छी लर्निंग रही है सबकी, हम सबकी। तो थैंक यू
I'm very glad. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसका हिस्सा बन सका आपके साथ. I'm so happy that I was a part of this. And अगर मैं इंशाल्लाह खैरपुर आऊँगा दोबारा तो मैं आप सबसे ज़रूर मुलाकात करूँगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिलके. All right. ठीक है. रियाज भाई, students, रमज़ान, यासीन, मैडम, खुदाफिज, अब्बास. Bye bye. Stay safe. हाँ, बहुत तेज बारिश होने वाली है. Okay, thank you. खुदाफिज.